Namaste. Greetings from Historical India. I am Kshitij Jain, a student of St. Stephen's College, University of Delhi, and I welcome you all to the third lecture of the historiography series at Historical India with Professor K.S. Gupta. After an intriguing inaugural lecture with Professor Soumya Day at Gandhi Bhavan, University of Delhi, and the second lecture with Professor B.N. Prasad at Daulat Ram College, University of Delhi, we are honored to have this time a highly renowned academician, author, and senior historian with us. Before going further, it becomes pertinent to shed a little light on the vision and mission of Historical India. Historical India is a community-based wiki platform stimulating an exclusive discourse on Indian history. It's a platform where one can create and edit articles, ensuring that this discourse reaches the masses by cracking the dynamics of SEO. This network envisions challenging the hegemony of wiki websites that function on the basis of Western perspectives by providing a counter narrative rooted in historical facts. The wiki also hopes to capture those areas of history that have not received adequate academic scrutiny as yet. Equipped with anti-spam detection, vendetta protection, next generation features, and many more functionalities, Historical India has been integrating the latest technological developments to ensure that the content remains foolproof. It also aims to serve as a platform for historical deliberation beyond the digital space. Several articles at Historical India have started to appear in top searches in search engines, and various other articles are primed to progress in this path after more developments to them in the form of content inputs take place. The historiography series is an attempt in this direction to equip students with the necessary skills to read, interpret, and eventually write history. With a multitude of narratives getting traction and political motives getting injected into these, the discipline of history is unfortunately becoming the biggest casualty. We believe that it is essential to get an idea of how history is to be written and understood so that a foundation can be established for future debate and discourse. The objective of this series is the formulation of a historiography policy document that shall be made part of the website's content policy. Now coming to the concept behind the lecture we are having today with esteemed Professor K.S. Gupta sir. India's medieval past has been reconstructed by relying on Persian sources that invariably privilege certain regions and kingdoms over others. Meanwhile, contemporary Rajasthani and Maratha sources remain largely ignored and unfortunately haven't attracted much scholarly and popular attention. The glorious history of Rajasthan teems with literature composed by numerous scholars and poets who epitomize the cultural and intellectual advancements that took place during various periods. These textual sources emanating from Rajasthan are immensely significant for any reconstruction of medieval Indian history. Historical sources to reconstruct medieval history of Rajasthan are variegated, but broadly can be classified into two categories. On the one, we notice Jain texts written in the period of Rajput principalities, which account for chronological development and the socio-religious and cultural aspects of their contemporary eras. And while on the other hand, prominent kavyas like Prithviraj Vijay comprehensively decode the specific regions in Rajasthan. Besides these, the Hamir Mahakavya, Amar Kavyam, and Surdan Charitra are some of the significant kavyas that provide us a very rich portrayal of the Rajput society. Prose literature of Katha is also equally significant for a historian studying medieval India. Texts like Prabandha Chintamani and Vrihat Katha Kosh give immensely valuable information about the social and political context of medieval Rajputana. Jain Pattavalis or chronological records contain accounts of various kings, including those who ruled in other parts of India too. Local histories of the various states of Rajasthan, commonly called khyats, are also repositories of historical traditions that have been preserved by several generations in success. Needless to say, they provide a historian with rich information on the social and political realities of those times. Texts like Nansiri Khyat and Jodhpuri Khyat are also equally important sources of history for our period. Well recorded in the numerous inscriptions written in Sanskrit as well as in local dialects. The Kumbhalgarh Prashasti and the inscription inscribed on the Kirti Stambh underscore the volatile political landscape as well as the changes that people faced in those uncertain times.
These inscriptions also outline the achievements of the great rulers of Rajasthan and their pervasive influence on the national politics. Thus, the literature of medieval Rajasthan can potentially help us move beyond regional frameworks and develop a history that has national implications. Colonel Todd, way back in the 19th century, had also expressed a fervent hope that these variegated records could be fruitfully used for reconstructed Indian history. It would be appropriate to quote his words from the Annals and Antiquities of Rajasthan. Colonel Todd says, in the absence of regular or legitimate historical records, there are, however, other works which, in the hands of a skillful and patient investigator, would afford to be indispensable material for the history of India. Sir Jadunath Sarkar was the first historian to investigate Rajasthani sources in right earnest, and ever since his monumental works were published, no prominent historian has undertaken any such effort. There is a need to tap into the vast literature of Rajasthan with urgency, so that discourse on medieval Indian history can be made more inclusive and well-rounded. This lecture attempts to stimulate such a discourse in the presence of a distinguished historian who has been taking strident efforts in this direction. I call upon Vikas from Hindu College, University of Delhi, to introduce us to our esteemed chief guest. Over to you, Vikas. Namaskar. It is my honor to introduce Shri Anurag Saxena ji. Shri Anurag Saxena ji is currently serving as the director of the Pratap Gaurav Kendra Rashtriya Tirath, Udaipur, Rajasthan. He hails from Rajasthan, Jaipur. After completing his education in BSc and later LLB, he further progressed to set up his self-independent business in Jaipur. In 2019, he took a voluntary break from his business life and since then serves full-time as the director of Pratap Gaurav Kendra Rashtriya Tirath, Udaipur. The Pratap Gaurav Kendra Rashtriya Tirath is located at Tiger Hills in the city of Udaipur, Rajasthan. It aims at providing detailed information regarding the history and achievements of the 54th custodian of Mewar, Maharana Pratap Singh. The Tirath enables one to contemplate over Hindu dharma and culture and revisit the inspiring life of great personages of our society. One can cruise through the awe-inspiring history of Maharana Pratap, Mewar, Rajasthan and Bharat as a whole. Anurag ji is also an avid researcher on Mewar and especially Maharana Kumbha. His book on Maharana Kumbha will ought to be in publication soon. Now, it would be my humble request to Anurag ji to deliver his address for today's lecture. Thank you. Namaskar. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हिस्टोरिकल इंडिया के इस यज्ञ में जो मध्यकाल के इतिहास को एक तरह से पुनर्लेखन का काम आप बहुत जोर शोर से पूरे देश में कर रहे हैं और उसके लिए एक लैंडमार्क आप खड़े कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बीच में बहुत ही बड़े इतिहासकार, बहुत ही नामी इतिहासकार, जिनके चरणों में बैठकर हम सभी को इतिहास के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण विषय राजस्थानी सोर्सेस के बारे में सुनने को मिलेगा। डॉक्टर के.एस. गुप्ता जी, बाकी बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ जानता नहीं हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल इंडिया की टीम सिद्धार्थ जी और उपस्थित सभी इस सेमिनार में भाग लेने वाले श्रोतागण। प्रताप गौरव केंद्र के बारे में अभी आपको जानकारी मिली है। अब सभी लोग जिस तरह हिस्टोरिकल इंडिया एक नए प्रकार का काम कर रहा है, प्रताप गौरव केंद्र पुराने काम को दिखाने के लिए उसी प्रकार का नया एक दृष्टिकोण लेकर काम करता है। हम सब लोग भी रिसर्च के आधार पर मेवाड़ के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, और केवल मेवाड़ ही नहीं तो भारत के ऐसे इतिहास को जो कहीं ना कहीं इतिहास के बीहड़ में छुप गया है,
या जिसको जानबूझकर छुपा दिया गया है, उसको जनता के, समाज के, विश्व के सामने लाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो विषय है, डॉक्टर के एस गुप्ता जी इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालेंगे ही। मैं केवल आपका जो काम है और आज का जो विषय है उसके बीच की कुछ जो लाइंस हैं उसके बारे में कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो इतिहास की जो हमारी देखने की दृष्टि है वो वास्तव में अंग्रेजों के बाद एक तरह से पैदा हुई है, खड़ी हुई है। इतिहास को देखने की दृष्टि, वो जो दृष्टि है वो भारतीय नहीं है, पाश्चात्य है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जब इतिहास की परिभाषाओं में जाते हैं, जब इतिहास के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वास्तव में वहां कोई भारतीय मनीषी नहीं है। वहां बृहस्पति की बात नहीं की जाती, शुक की, सूत की, महर्षि सूत की बात नहीं की जाती, जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के अपने ढंग को प्रस्तुत किया है। हम हेरोडोटस की हम बात करते हैं, हिगल की हम बात करते हैं, की हम बात करते हैं, स्पेंगलर की, और यहां से इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि भारतीय मनीषियों ने भी, भारतीय जो मेधा थी उसने भी इतिहास के बारे में हम सबको बताया है। हम सभी जानते हैं भारत में अनेकों विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उन विश्वविद्यालयों में इतिहास नाम का विषय पढ़ाया जाता था। हाँ, ये अलग बात है कि हम राजनीतिक इतिहास पर हमारा फोकस नहीं था। हमारी जो उस समय की जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो इतिहास को मानव जीवन के अनेकों पहलुओं में से निकालने का प्रयत्न करती है, अनेक पहलुओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न करती है। इसलिए इतिहास को देखने की हमारी जो दृष्टि है वो पाश्चात्य दृष्टि से कहीं ना कहीं अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम इतिहास की बात करें तो अपने इतिहास को समझने का और उसके नाते हमारी दृष्टि को एक प्रकार से समायोजित करने का भी पहले हमको अपना प्रयास करना होगा कि अभी तक हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो पाश्चात्य दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि अब जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जब हम इतिहास के बारे में पुस्तकों को खंगालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कर्नल टॉड से शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि राजस्थान में इतिहास के बारे में जो सबसे बढ़िया काम कर्नल टॉड ने किया है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि कुंभलगढ़ में जो शिलालेख लगे हुए हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है, वो महाराणा कुंभा का एक ऐसा काम है जो इतिहास के लेखन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं, पड़ाव होना चाहिए। विशेष रूप से मेवाड़ के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनकी बात करें। अभी यदुनाथ सरकार जी की बात की गई। यदुनाथ सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल, उन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मैं इस दिशा में ये कहना जरूर चाहूंगा कि हम लोगों ने उन इतिहासकारों को कहीं ना कहीं एक तरह से उपेक्षित कर दिया, या एक तरह से उनकी ओर देखना, उनके काम की अवहेलना कर दी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया था। जहां तक आती है इतिहास लेखन में ऑथेंटिक सोर्सेस की बात, प्रामाणिक स्रोत की बात, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में या विश्व के किसी भी देश में बहुत सारे प्रशस्तियां, शिलालेख, भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो मैं राजस्थान के सोर्सेस की बात करूं तो पट्टे, परवाने, रेवेन्यू के जो चालान होते थे, या जो एक दूसरे के लिए पत्र लिखे जाते थे जिसको खत खरात बोला जाता था, ये सब चीजें वास्तव में राजस्थानी सोर्सेज में काउंट की जाती हैं। ये सभी सोर्सेज ऐसे हैं जो किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, भारत के किसी भी हिस्से में उतने ही प्रामाणिक हैं, क्योंकि उस समय की भाषा, उस समय की लिपि उसमें छुपी होती है, जिसके आधार पर उसको वो प्रामाणिकता की श्रेणी में आते हैं। अब हमको उस दौर में जाना पड़ेगा, उन लिपियों को समझना पड़ेगा। आज उन लिपियों को पढ़ने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो अभी भी अपठनीय हैं, जिनको पढ़ा नहीं गया है, या वो सोर्सेज रखे तो हैं लेकिन
हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो ऐसे सोर्सेस को भी लगातार ढूंढते रहने की जरूरत है। राजस्थान के इतिहास लेखन की दृष्टि से ये मैं बताऊं तो ये जो सब चीजें, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जिनके बारे में अभी शोध होना बाकी है। नीचे ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम जाएंगे तो जागीरदार जहां हुआ करते थे उन स्थानों पर भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर के एस गुप्ता जी ने ऐसे कई स्थानों पर विशेष रूप से कुछ ठिकानों के लिए उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, और ऐसे बहुत सारे विषयों पर वो काम करते हुए उन्होंने भारतीय विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास के संबंध में सच्चाई को सामने लाने का प्रयत्न किया है। मध्यकालीन भारत में जब हम इतिहास के पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सभी सोर्सेस को ढूंढकर और उनके साथ बाकी सोर्सेस के तालमेल के साथ, उनका रेलेवेंस के साथ, उनकी रेलेवेंस कितनी, उसके साथ उसका समायोजन जब हम बिठा लेते हैं, समन्वय जब बिठा लेते हैं, तो हम एक्चुअल इतिहास तक पहुंचते हैं। तो इतिहास केवल वो नहीं है जो केवल एक पक्ष ने कह दिया। अब हुआ ये कि मैं चूंकि प्रताप गौरव केंद्र पर काम करता हूं, तो विशेष रूप से महाराणा प्रताप को लेकर हम जब काम करते हैं तो एक बात जो ध्यान में आती है, महाराणा प्रताप के साथ इतिहास के जो विद्यार्थियों ने और इतिहासकारों ने जितना बड़ा अत्याचार किया है, मैं समझता हूं शायद किसी और विभूति के साथ नहीं किया होगा। महाराणा प्रताप के बारे में केवल एक दृष्टांत की करते सामने रखते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में लिखते हुए जो इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि महाराणा प्रताप उस युद्ध से चले गए थे, भाग गए थे, और इसके कारण से वो युद्ध हार गए। अब युद्ध वो हारे थे कि नहीं हारे थे, इसके बारे में कई मत हैं। यहां तक कि अबुल फजल और अल बदायूनी भी जब लिखते हैं तो उनके खुद के लेखन में भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हमको नजर आते हैं। लेकिन जिन इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्याख्या की, उन्होंने जो इतिहास के सोर्सेज हमारे सामने दिखाई दे रहे थे, उनको कहीं ना कहीं देखने में या तो अवहेलना की, जानबूझकर अवहेलना की, या फिर उनके उनकी इग्नोरेंस के कारण से एक बहुत बड़ा असत्य पूरे देश में फैल गया। मैं इस संबंध में दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। मेवाड़ में एक स्थान पर सूरखंड शिलालेख मिला, और वो जो शिलालेख है वो विक्रम संवत 1642 का है, यानी महाराणा प्रताप का समकालीन है, ईस्वी सन 1585 का, जब महाराणा प्रताप स्वयं जीवित थे उस समय का वो शिलालेख है। वो शिलालेख क्या कहता है? वो शिलालेख की 4 पंक्तियां हैं, वो पढ़ता हूं, उसका अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगा। महाराजा धीराज प्रताप सिंह जी ने राठड़ का राज जब पराजय कर सिसोदियाण का राज संवत 1642 में राज प्रताप की आसुरशंड नगेर पर राजकाद उस में मुगल अकबर के सेनापति रा मानसे को 7 युद्ध था। महाराणा जी असवज पर पुशी में रणसण जी का मदिरा डोरी च 3 स का प्रसाद की आ लुवी हल च 4 पुजारी कुख रण को दा जेठ शुक्ल एकादशी, यानी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन महाराणा प्रताप सिंह ने राठौड़ को राज्य को पराजित कर सिसोदियों का राज संवत 1642 में राज का प्रताप किया, प्रभाव किया, और उस समय अकबर के सेनापति मानसिंह के साथ युद्ध किया। और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में महाराणा जी विजय हुए, और इसी प्रसन्नता में उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डोली का प्रसाद किया, और लुबी यानी भूमि, 4 हल भूमि एक मंदिर के पुजारी के पुत्र को उन्होंने दान में दी। अब ये एक ऐसा सोर्स है कि मंदिर के बाहर एक शिलालेख लगा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है, और कोई भी जाकर इसको पढ़ सकता है। तो जो लोग हल्दी घाटी के बारे में 20वीं शताब्दी में लिखना शुरू कर रहे थे, या 19वीं शताब्दी में, या उसके बाद जिन्होंने लिखा, या हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो लेख लिख रहे थे, उन्होंने एक बड़ा जो मैंने कहा ना अत्याचार किया महाराणा प्रताप के साथ, वो ये किया कि उन्होंने जो उसके और पैरेलल सोर्सेस थे उनको नहीं जांचा। अब
इसी से मिलता जुलता एक और सोर्स है जो उदयपुर के बहुत प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भी लगा हुआ है। वो संस्कृत में है सोर्स, और वो विक्रम संवत 1708 का, यानी थोड़े साल बाद का है। और उसमें भी इसी प्रकार से महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में विजय लिखी हुई है। और इस प्रकार के सोर्सेस के साथ जब हम अबुल फजल के या अल बदायूनी के लेखन को सामने रखकर उसकी तुलना करते हैं, तो निश्चित रूप से यह तय हो जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध में विजयी हुए थे, और 100% विजयी हुए थे। अब इन सब बातों के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं, तो उसमें से एक जो विषय निकलता है, वो विषय ये है कि हमको इन सोर्सेस को जो हमारे सामने बिखरे हुए हैं, अभी तो मैंने ओरल सोर्सेस की बात ही नहीं की है। सौभाग्य से हमारे देश में ओरल सोर्सेस का भी एक बहुत बड़ा प्रचलन है। वास्तव में तो जो हमारे प्राचीन काल का इतिहास है, उसको अगर हमको समझना है, तो ओरल सोर्सेस एक बहुत बड़ा उसका माध्यम हो सकते हैं। और बाद के काल में भी, आज भी, जैसे नरसिरी ख्यात की बात की, नरसिरी ख्यात चूंकि लिखित में आ गई है इसलिए, नहीं तो ऐसी बहुत सारी और ख्यातें हैं और ऐसे सोर्सेज हैं जो ओरल हैं, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने एक दूसरे को बताया है। आज भी वो गाए जाते हैं, आज भी वो हमारे समाज में, लोक जीवन में उनके बारे में लोगों को जानकारी है। तो ऐसे ओरल सोर्सेस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारे देशों में जहां पर अभी ओरल सोर्सेस को भी मान्यता मिली है और इतिहास लेखन का प्रामाणिक सोर्स उनको मान लिया गया है, हमारे देश में अभी भी इतिहासकार पता नहीं क्यों इन ओरल सोर्सेस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इन ओरल सोर्सेस में कुछ बातें ऐसी हों जो अतिरंजित हों। उन बातों को अगर हम तत्कालीन उस पैरेलल सोर्सेस के साथ, जो और सोर्सेस हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनको बैठाएंगे, उनके साथ मिलकर उनकी तुलना करेंगे, तो हमको निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का, विशेष रूप से मध्यकालीन इतिहास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में एक नई दृष्टि हमारे सामने आएगी। प्रताप गौरव केंद्र इस काम में अपनी ओर से प्रयत्न कर रहा है। हिस्टोरिकल इंडिया ने एक बहुत अच्छी मुहिम पर काम करना शुरू किया है। पुनः आपको शुभकामनाएं देते हुए, राजस्थानी सोर्सेज के संबंध में किसी भी प्रकार का सहयोग या हमारा कोई किसी भी प्रकार का आपको कोऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो हम हमेशा तैयार हैं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। I would now request Rajat from Hansraj College to please introduce Professor K.S. Gupta to us. Hello everyone, myself Rajat Pratap. So the speaker for today's session, as already has been said, is Professor K.S. Gupta sir, who shall enlighten us with his remarkable knowledge of the discipline. Professor K.S. Gupta is a senior historian and famed author who has served as former head of department in Department of History, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. He is also the national vice president of Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana. He was born in Baneda, Bhilwada district in 1932. Sir completed his MA in 1955, LLB in 1956, and PhD in 1961. After his retirement as professor in 1992, he remained a visiting professor at Dr. Hari Singh Gaud University, Sagar, and Rajasthan Vidyapith, Udaipur. He is a prolific writer and was a senior fellow at the Indian Council of Historical Research. He has authored 14 historical works that have earned recognition from several historians. His recent publications include Maharana Kumbha Vyaktittva Evam Kratitva, Mewad and Maratha Relations, Rajasthan Ka Itihas Ek Sarvekshan, Mewad Itihas Ke Avismaraniya Prasang, and many more. He has contributed over 50 research papers in various journals and magazines. He has also presented research papers in more than 60 seminars and conferences. He has also presided sessions dealing with medieval history in the Punjabi History Congress, Patiala, in the Rajasthan History Conference, Jodhpur. 44 candidates have completed their research work for the award of PhD degree under his supervision. He has been honored with several awards that include the prestigious Kumbha Award bestowed upon him by the Maharana Mewar Charitable Foundation, Udaipur,
Gauri Shankar Ojha Award by the Gujarat Sahitya Sangam, Mewad Award by the Mewad Adhyan Evam Vikas Sansthan, and the Rajendra Mohan Bhatnagar Smriti Puraskar. He has held important positions in various organizations. He was the president of Veer Shiromani Maharana Pratap Samiti Udaipur, president of Itihas Sankalan Yojana, Chittor Prant, president of Mewad Adhyan Evam Vikas Sansthan, Bhilwada, and governing council member of Maharana Pratap Smarak Samiti, Udaipur. Thank you so much for being with us here today, Professor. The stage is all yours. Thank you. Respect to all the members of Historical India and other friends. I am really very sorry कि ये सारा देरी मेरे कारण से हो गई है, और जैसा कि इतिहास राजस्थानी सोर्सेज के बारे में बात करने की बात हुई है, तो मैं सबसे पहले तो हिस्टोरिकल इंडिया को आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया, हालांकि उनको मैंने तकलीफ में जरूर डाल दिया। जहाँ तक राजस्थानी इतिहास के सोर्सेज का प्रश्न है, ये कहते हैं कि राजस्थान का इतिहासकारों के लिए एक स्वर्ग है, एक पैराडाइज जैसा है कि यहाँ अथाह सामग्री है और उस सामग्री पर अब तक काम नहीं हुआ। जैसा कि पहले बातचीत हो रही थी कि सोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण साधन है साहित्यिक सोर्सेज। राजस्थानी भाषा का भी उद्गम 9th सेंचुरी के आसपास हो गया था, और इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, फ्रॉम 1850 to 1400, और 1400 to 1900 एंड ऑनवर्ड्स। और इस वक्त बहुत साहित्य की रचना हुई है, और उस रचना में क्योंकि साहित्य के बारे में संदेह तो रहता है कि उसको कैसे, इतिहास पर कितना है या उसमें कितनी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, परंतु ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं कि जो साहित्य की दृष्टि से लिखे हुए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं तो हमारे यहाँ पर वो सोर्सेज हैं, शिलालेख हैं, गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ख्यात साहित्य। ख्यात का मतलब विख्यात, प्रसिद्ध, और ख्यात एनोनिमस है इतिहास का। क्योंकि 16वीं शताब्दी में ख्यात लिखना शुरू हुआ था। ये मुगल इम्पैक्ट कह सकते हैं, मुगल की आवश्यकता के कारण से ये लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है वो ख्यात है नैन्सी की। मोहता नैन्सी जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह के समय में वो देश दीवान के पद पर थे, सारा रेवेन्यू उनके पास में था, रेवेन्यू की देखभाल वो करते थे, हर जगह जाना करना उनका रहता था। तो ये ग्रंथ अपने आप में 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। एक ग्रंथ लिखा है कि और दूसरा ग्रंथ है प्रगनारी विगत। प्रगनल 7 प्रगनों को उन्होंने लिखा। तो नैन्सी की ख्यात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल जोधपुर तक ही नहीं परंतु अन्य राज्यों का भी इसमें विवरण है, और ये विवरण उन्होंने अनेक स्थानों से लिख करके पूछ करके इकट्ठा किया और उसमें अपना लेखन कार्य किया। क्योंकि देश दीवान होने के कारण से जोधपुर से वो वाकिफ थे। जोधपुर के राज्यों में खूब घूमना होता था, सब जगह किया। जैसे विगत का मैं बता रहा हूँ, प्रगना की विगत, उन्होंने इतना लिखा कि आबादी कितनी थी, आबादी में जनसंख्या के आधार पर थी, वहाँ अगर पानी है तो कितने समय के खेती का पानी वहाँ पर है, आमदनी कितना है। आज के गजेटर्स देखें तो उससे भी ज्यादा वो उपयुक्त है। और अगर उससे अबुल फजल से तुलना करें, दोनों ही करीब करीब बात एक के बाद दूसरे हुए हैं, तो जितना उन्होंने लिखा है सारा वर्णन
राज्य के हिसाब से किया है, शायद उतना विवरण अबुल फजल ने भी लिख किया है, उससे ज्यादा काम उनका महत्वपूर्ण है। तो ये ख्यात वहां से शुरू हुई और ख्यात के बाद में अनेक ख्यातें लिखी गई। मारवाड़ में ख्यात सबसे ज्यादा लिखी गई, जिसमें जसवंत सिंह की ख्यात है, त्रिलोकी की ख्यात है, और इन ख्यातों में वो सारे ऐतिहासिक विवरण है। इसी ढंग से दयाल दास की ख्यात है, उसमें बीकानेर का विवरण सबसे ज्यादा है और बीकानेर की सारी एक्टिविटीज, महाराजा का कार्य, आम जनता की भावनाएं उसमें उसे दर्शाया गया है। इसी ढंग से और भी ख्यातें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे साहित्य में बात साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। बात साहित्य का अर्थ है कि किसी एक घटना को लेकर के, किसी एक नायक को लेकर के लिखा जाए, वो बात साहित्य है। जय सिंह की बात है, नरहरि की बात है, और उन्होंने एक घटना को लेकर के उनके बारे में लिखा है। वैसे नैन सिंह की ख्यात को भी बात का ग्रुप मानते हैं, अनेक बातों का उसमें समावेश किया है। और ऐसे अनेक राजस्थानी सोर्सेज हैं जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वचनिका है, रतन सिंह की वचनिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सारे युद्धों का वर्णन है, और वचनिका और बात में सिर्फ एक ही फर्क है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती थी और दोनों का साथ साथ रहता था। इसलिए ये तो साहित्य की दृष्टि से 4 भागों में सीताराम लालस ने इसको बांटा है। एक भाग जैन सोर्सेस, चारण सोर्सेस, भक्ति सोर्सेस, और एक लोक साहित्य। तो चारण साहित्य, लोक साहित्य, जैन साहित्य और भक्ति साहित्य में खूब लिखा है। जैसे भक्ति साहित्य में तो अनेक संत हुए, यहाँ निर्गुण और सगुण संतों का कोई अंतर नहीं था। दादू पंतु ने का भी काम किया है, दादू वाणी भी लिखी गई है। और इसमें से इन लोगों ने जितने, मीरा के पद बहुत महत्वपूर्ण है, जसनाथ के महत्वपूर्ण है, लालच के महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने राम स्नेही संप्रदाय की वाणी अपने आप में महत्वपूर्ण रखती है। तो इन भक्ति आंदोलन और चारण साहित्य ने तो सबसे ज्यादा रचनाएं की थी। रासो साहित्य हो या अन्य हो, रासो साहित्य सबसे पहले शुरू होता, उसका प्रारंभ 9वीं शताब्दी में मानते हैं। खुमान रासो जैसे एक ग्रंथ है। अब रासो किसे कहते हैं, इसके बारे में विविध मत है। कुछ इसको रहस्य से जोड़ते हैं, कुछ इसको रसायन से जोड़ते हैं, और कुछ इसको एक विधा है कि रस जिसमें मिलता हो, आनंद जिसमें आता हो, उसको रासो साहित्य कह दिया गया है। तो रासो साहित्य आनंद का साहित्य है, महत्वपूर्ण साहित्य है। जैसे खुमान रासो है, अनेक अन्य रासो हैं। तो रासो अपने रंग से महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। बीकानेर में ये सारे राजस्थान की जितने भी प्राचीन रियासतें थी, उनके रिकॉर्ड्स वहां पर विद्यमान है। और ये रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें रिकॉर्ड्स में खरीदता भी है, मुगल दरबार से आए हुए फरमान भी है, निशान भी है। खरीदता उसे कहते हैं कि एक शासक दूसरे शासक को जो पत्र लिखता है वो खरीदता कहलाता है। फरमान मुगल आदेश का है। निशान जो मुगल परिवार के लोग, अगर राज परिवार के लोग हैं, वो अगर पत्र लिखते हैं तो वो निशान कहलाता है। तो ऐसे एक कुछ वर्षों पहले राजस्थान स्टेट आर्काइव्स ने एक प्रयोग किया था कि विद्वान हमारे यहाँ आए, उसके बजाय हम विद्वानों के दरवाजे पे जाए, उन पर खत कराया जाए, जितनी भी सामग्री उसको प्रकाशित की जाए। और उस ढंग से अनेक फरमान, निशान वगैरह को किया है।
करीब 500-700 फरमान निशान वगैरह एक साथ हुए, जिसमें सिरोही के भी थे, बीकानेर के भी थे, जोधपुर के भी थे और आमेर और जयपुर के भी थे। आमेर 1727 के पहले आमेर राजधानी थी और 1727 के बाद में जयपुर राजधानी हो गई। तो ये काफी सामग्री, इसमें अनेक वही 2 तरह की सामग्री आर्किवल रिकॉर्ड से मिलती है। एक तो पत्र, जो विभिन्न स्थानों से आए हुए पत्र हैं, वो जैसे मराठा फाइल से एक, तो महाराष्ट्र से आए हुए होलकर, सिंधिया, इन सब के पत्र अलग अलग रूप में रखे हुए हैं और वो सारे मराठा नीति का क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा मुगलों से अपना राज्य लिया, जबकि अब ये स्पष्ट है कि मुगलों से राज्य न लेकर के यहाँ के राजपूत मराठाओं से लिया। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये राजपूत मराठा एक साथ होकर के लड़ते, एक साथ होकर के संघर्ष करते, तो ये जो पावर वैक्यूम दिल्ली में हुआ है, वो पावर वैक्यूम का फिल जो है एक इंडिजिनस, एक स्थानीय शक्तियों से हो सकता था, परंतु उन स्थानीय शक्तियों ने से आपसी झगड़े, झंझटें, संघर्ष, उसके कारण से वो एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया था। और इसके कारण से एक साथ होने के बजाय उन्होंने आपस में संघर्ष वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि राजस्थान में ये स्थिति थी कि अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में भी, अपने आंतरिक मामलों में भी मराठाओं की सेवाएं लेने लगे। उनको प्रलोभन दिया जाता था, धन का दिया जाता था, और काम होने के बाद में पैसा नहीं देते थे, तो पैसा वसूल करने के लिए मराठाओं को आना पड़ता था। इसलिए बराबर 1707 से लेकर के 1818 तक राजस्थान में मराठा युग कहलाता है, और उसके बारे में बहुत से पत्र, वो पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पत्र हैं, और कुछ पत्र तो इन्होंने पुनः उन्होंने छापे भी है। शिवाजी की जो यात्रा, वापिस यात्रा है 1665 में, जो मुगल दरबार में आना होता, और किन्हीं परिस्थितियों में वापिस जाना पड़ा, वो जाना कम रोमांटिक नहीं था। किस ढंग से गए, किन किन का सहयोग मिला, वो सारे पत्र छपे हुए हैं, जिनको पूना के संस्था ने। तो इस ढंग से बहुत से पत्र हैं जिनमें सारे संबंधों को देखना आसान हो सकता है। किस ढंग से राजस्थान के इन शासकों ने गलतियां की है कि जिसके कारण से ये सारा मराठा प्रभाव एक रूप से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और आपस में भी बहुत ऐसा करते रहे कि आपस में मिलते थे। 1734 में होड़ा में मिले, 1734 के बाद में अनेक बार 1787 तक मिलते रहे, परंतु कोई परिणाम नहीं रहा, क्योंकि मराठाओं की मदद की आवश्यकता थी। तो इस आर्किवल रिकॉर्ड्स में ये मराठा का बहुत कुछ सामग्री मिल जाती है। केवल यही नहीं, सामाजिक जीवन को जानने के लिए भी अथाह सामग्री वहां पर है। बीकानेर आइस्ट में हकीकत वहियां हैं, जिसमें डे टू डे शासक किससे मिलते थे, क्या मिलते थे, वो सारा उसमें मिल जाता है। तो हकीकत वहियां हो, बिहाव की वहियां हो, या अन्य वहियां हो, ये सारे सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को परिलक्षित करती होती है। इतनी अथाह वहियां है। और ऐसा कहते हैं बजट यूजीसी का कितने सालों के लिए बीकानेर आर्किव को दे दें तो करीब 10-20 साल से कम समय नहीं लगेगा वो सारा अपने उसको ट्रांसलेट करने में।
तो परंतु मैं सबसे ज्यादा जोर एक नए सोर्स मिलते जा रहे हैं, ये सारे सोर्सेस सुरक्षित है। नेशनल आर्काइव्स में रखे हुए सामग्री सुरक्षित है, स्टेट आर्काइव्स में रखी हुई सुरक्षित है, परंतु राजस्थान में एक सामग्री और है, एक महत्वपूर्ण आर्किवल रिकॉर्ड है, उनका ध्यान अब जाने लगा है। बहुत सी सामग्री उसमें नष्ट हो गई, उसको ठिकाना रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठिकाना में पूर्व जागीरदार या पूर्व जागीरदार परिवार की या कर्मचारी थे, उनके पास में रखी हुई सामग्री, जब तक जागीरदारी एबोलिशन नहीं हुआ वो सामग्री यथावत रही। जब तक ये हेरिटेज होटल्स का स्कीम नहीं चली, जब तक कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, परंतु जागीरदारी एबोलिशन हेरिटेज होटल के बाद में ये सामग्री नष्ट प्राय हो रही है। ये सामग्री स्थानीय सामग्री कहलाती, परंतु इस सामग्री का महत्व अखिल भारतीय। इस सामग्री के आधार पर हम इन शासकों के, मुगलों के प्रति नीति भी देख सकते हैं, इन शासकों के मराठाओं के प्रति नीति भी हो जाती है, और आगे जाकर के ब्रिटिशर्स के प्रति नीति का भी इसमें सारा खूब विवरण मिलता है। और इसके साथ साथ ही अनेक घटनाएं यहाँ पर है, और आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, उसमें ये ठिकाना रिकॉर्ड्स अद्वितीय है। और इन ठिकाना रिकॉर्ड्स को इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि शीघ्र इन पर काम नहीं हुआ, इनको संभाला नहीं गया, इनको एकत्रित नहीं किया गया, तो जल्दी ये बाकी की सामग्री भी नष्ट प्राय हो जाएगी, और ये होती जा रही है। हालांकि उस व्यक्तियों ने, उस इतिहासवेताओं ने काफी इस पर ध्यान देना शुरू किया है, और बहुत से ठिकानों के रिकॉर्ड्स को पब्लिश भी किया है, जैसे बनेड़ा रिकॉर्ड्स है, बेदला रिकॉर्ड्स है, कानौर रिकॉर्ड्स है, मारवाड़ रिकॉर्ड्स, ठिकाना रिकॉर्ड्स है। तो ये बहुत आते जा रहे हैं, परंतु ये चाहे आर्थिक दृष्टि हो, इसमें बहुत आर्थिक दृष्टि से हम ये पता लगा सकते हैं कि पहली बार अगर किसी सोर्स में मूल्यों के, कीमतों के बारे में मिलता है, तो इसमें इन रिकॉर्ड्स में मिलता है। अब ये रिकॉर्ड देख लें हम, पर्शियन रिकॉर्ड्स में भी आर्थिक दृष्टि से मूल्यों के बारे में कुछ थी कि क्या खाद्य मूल्य क्या है, एक दूसरी मूल्य कितना क्या है। तो आपको एक कंपेरेटिव अध्ययन करना है कि खाद्य मूल्यों में क्या कमी और बढ़त और कमी क्यों आई, औसत परिवर्तन हर साल कितना होता रहा है, खाद्य मूल्य का ये मूल्य वृद्धि या मूल्य की गिरावट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक जीवन के बारे में, इसके बारे में बहुत अच्छा इस सामग्री मिलती है, और ये सामग्री इतनी मिलती है कि रेवेन्यू कितना आ रहा था, रेवेन्यू के सिस्टम क्या था, कुता क्या था, ये दूसरी चीजें क्या थी कि किस ढंग से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, मुकाता किस ढंग से दिया जाता था, क्योंकि मुकाता मीन्स ठेका पर था, लाटा कूता अलग है। कूता तो खड़ी फसल जो होती थी उसको असस करके राज अपना ये हिस्सा तय कर लेता था, और लाटे में उनको निकाल करके दूसरे को अलग करके उनको घेरियां बना दी जाती थी, और उस घेरियों के आधार पर राज्य का कितना हिस्सा था वो मिला था। तो राज्य कितना लेता था, किस प्रकार की भूमि थी, पीवल भूमि क्या थी, लाखड़ भूमि क्या थी, ये अनेक भूमियों के जो किस्म है, गोरमा भूमि क्या थी, ये सारी चीजें भूमि के उत्पादन क्षमता के आधार पर, भूमि के नजदीकता के आधार पर ये सारा किया जाता था। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री हमारी इस ठिकाना रिकॉर्ड्स में मिलती है। ठिकाना रिकॉर्ड्स में इतनी व्यापक सामग्री है कि, और वो सामग्री केवल स्थानीय नहीं है,
राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका महत्व है और उसका महत्व अनेक दृश्यों से। राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजपूत मुगल संबंध देखना हो तो ये ठिकाना रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि शासकों की नीति क्या रही, उसका रिएक्शन क्या है। अगर स्थानीय प्रतिक्रियाएं देखनी हो, स्थानीय प्रतिक्रियाओं के बारे में मालूम करना हो, तो ये सबसे बड़ा साधन हमारे ठिकाना रिकॉर्ड्स है। तो ठिकाना रिकॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता आज है। ठिकाना रिकॉर्ड्स आर्थिक नहीं, यहाँ तक कि सारी चीजें भी, सोने चांदी के भाव, गहने, पोशाकें, कपड़े, उद्योग धंधे किस प्रकार के थे 18वीं शताब्दी में विशेष तौर से वो सारा मिल जाता है। उसके बाद में भी काफी मिलता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो फिर उस समय से ठिकाना रिकॉर्ड्स पर अगर राजस्थान की स्टडी करना या मैं तो करूँगा अगर भारतवर्ष को भी देखना हो तो इन ठिकाने रिकॉर्ड्स को माध्यम बनाया जा सकता है। हालांकि वो मध्यकाल में नहीं आता है। 1857 की क्रांति के बारे में किस प्रकार की नीतियां थी, आम जनता का क्या रिएक्शन था, इन स्थानों में बाहर से आने वाले जो विद्रोही सैनिक थे उनके साथ में क्या बर्ताव किया गया था, ये सारा देखना हो तो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन ठिकाने रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। तो ठिकाने रिकॉर्ड्स काफी व्यापक है, केवल कुछ नहीं, बिहार की बहियां भी है, यहाँ पर भी हकीकत बहियां भी है जो आज बीकानेर आर्काइव में बहियां है, वैसी बहियां उसी का ढंग से सारा ध्यान रखना, बिहार की बहियां का क्या योगदान है, किस प्रकार का है, गहने कहाँ से बनते थे, कहाँ से लाते थे, कपड़े कहाँ के मशहूर थे और किस ढंग से लाए जाते थे, ये सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ठिकाना रिकॉर्ड्स अपने आप में है। तो राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से एक ही रिकॉर्ड नहीं, अनेक प्रकार के रिकॉर्ड्स बराबर मिलते रहते हैं। उन रिकॉर्ड्स का अपना महत्व है और उन रिकॉर्ड्स के आधार पर इतिहास लिखना आज बहुत सुलभ हो सकता है। जो बहुत सी इतिहास में बाधाएं लिखने में, वो बाधाएं दूर हो सकती है और एक वास्तविक इतिहास की ओर हम जा सकते हैं। आज आवश्यकता है कि इतिहास का वास्तविक रूप क्या हो। इतिहासकार के लिए केवल पास्ट ही नहीं है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पास्ट को देखने की अपनी अलग निगाहें होती है। उस से राजस्थान की सामग्री को, चाहे साहित्य हो, जैसे शिलालेखों के बारे में उन्होंने दे दिया है, ये शिलालेख बहुत मिलते हैं। काफी शिलालेखों पर किताबें छप चुकी है हमारे यहाँ पर, जिसमें ओरिजिनल शिलालेख है। उसमें राम वल्लभ सोमानी हो, चाहे शिमाली जी हो, चाहे जुगनू हो, बहुत उन्हें, चाहे व्यास जी हो, इन्होंने बहुत सी सामग्री जो उपलब्ध हो पाई उनको अभी तक तो शायद उसका कुछ अंश ही हम शिलालेखों को लाग सके। और शिलालेख इतिहास को नए सिरे से देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जैसा कि अनुराग जी ने जिक्र भी किया होगा, दो एक शिलालेखों का, जो एक जगदीश मंदिर प्रशस्ति है और एक सूर्यखंड लेख है, उसमें आप ये जो बहुत सी घटनाएं, खास तौर से प्रताप के संबंधी जो जिक्र कर रहे थे, वो संबंधी घटनाएं, हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम और बाद के युद्धों के परिणाम, 1585 तक के बाद में अकबर ने क्यों किसी को मेवाड़ में अधीनता के लिए नहीं भेजा, ये अनेक शिलालेख हैं। मंदिरों के शिलालेख हैं, मंदिरों के निर्माण, मंदिरों पर होने वाले खर्चे, मंदिरों पर काम करने वाले सारे, ये जिसे कहने के ठिकाने रिकॉर्ड्स में हर कर्मचारी को वेतन के बारे में, अनेक बारियों में मिल जाता है। तो कि इतना व्यापक रूप से इनमें हमारे
जो शिलालेख है, शिलालेखों का बहुत महत्वपूर्ण, और अभी भी शिलालेख अनकेयर्ड पड़े हुए हैं बहुत सी जगह, उनको एकत्रित करना है, उनको अध्ययन करना है। और कुछ प्रयास भी हुए हैं, चौपासी वालों ने प्रयास किया था, एक शोध संस्थान है चौपासी में, उन्होंने अज्ञात शिलालेखों पर काम किया, और अज्ञात शिलालेखों में अच्छे शिलालेख पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, उनको पता लगा करके एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया। और इतिहास की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसमें हमारे आर्किटेक्चर के ढंग से भी बहुत आ सकता है, कला के हिसाब से भी आ सकता है, कला की विभिन्न गति देखना तो भी उससे आ जाता है। तो इन शिलालेख जो राजस्थानी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, और इस इनसे अलग भाषाओं में, और इनको पढ़ने में निश्चित रूप से दिक्कत आती है, खास तौर से आर्किवल रिकॉर्ड्स में, क्योंकि मॉडर्न स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, एक लाइन से पूरी लाइन तक कोई ब्रेकअप सेंटेंसेस वगैरह नहीं है। कुछ वर्ड्स भी कॉमन है, जैसे ख और श में फर्क नहीं लगेगा, वे और व में फर्क नहीं लगेगा। क्योंकि इस ढंग से इस पर थोड़ा मेहनत करके, परंतु ये सामग्री बहुत आवश्यक है, राजस्थान इतिहास की दृष्टि से नहीं, भारतवर्ष के इतिहास की दृष्टि से भी। मैं एक बार और आपका आभार, धन्यवाद। क्वेश्चंस वगैरह? यस सर। सो जिसके पास भी प्रश्न है सर के लिए, वो रेज हैंड ऑप्शन यूज करके वो एक बार दे में रेज द हैंड्स, एंड देन हम उन्हें अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। So we had received a few questions from some participants. तो सर वो ये पूछ रहे हैं कि बैटल ऑफ खानवा के बारे में हमें जितना भी पता है वो पर्शियन सोर्सेस पे बेस्ड है। तो बैटल ऑफ खानवा का अगर कोई अल्टरनेटिव भी है, कोई अल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है, या अगर वो सेम हिस्ट्री भी है, तो उस पे राजस्थानी सोर्सेस क्या कहते हैं बैटल ऑफ खानवा के बारे में? जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी को तो हमने एक टाइप से उस पर रिसर्च करके उसका एक अल्टरनेट हिस्ट्री भी पता चल रहा है, बट बैटल ऑफ खानवा के बारे में एक्सेसिव डिपेंडेंस बाबरनामा पे हम लेते हैं, और उसके आगे के जो पर्शियन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं, सो वो टाइम के कंटेम्प्रेरी राजस्थानी सोर्सेज क्या कहते हैं ऑन द बैटल ऑफ खानवा? There is one book based on their contemporary records, मेवाड़ का इतिहास। वो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स जो उस वक्त बुलेटिन निकलती थी महाराणाओं की, वो डेली बुलेटिन के आधार पर लिखा हुआ है, तो वो एकदम कंटेम्परेरी है बिल्कुल। और उसी बेसिस पर जो ये कहते हैं, बाबर ने जो लिखा ने कि राणा सांगा ने सेंट हिज एम्बेसडर फॉर सम अलायंस, तो इनफैक्ट उस किताब से, जिसको जीएन शर्मा ने भी बहुत कोट किया है, कि खानवा की इस लड़ाई में इनिशिएटिव वाज टेकन फॉर अलायंस वाज टेकन बाय बाबर, नॉट बाय सांगा। तो और उसके अलावा युद्ध के परिणाम के बारे में तो सब ये थे। हमारा राष्ट्र साहित्य भी बहुत लिखता है इसमें, और सबका यही मानना है कि बाबर ने मदद की आवश्यकता समझी, कहा कि मेवाड़ का इतिहास बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स quoted, vastly quoted by G.N. शर्मा, उन्होंने साफ लिखा है कि ये युद्ध में इनिशिएटिव किसने लिया, दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती का है। और बाबर, उन्होंने और भी बहुत से आर्गुमेंट दिए G.N. शर्मा ने,
और इसलिए कहा कि दोस्ती का केवल बाबर ही कर सकता था, उसको आवश्यकता ज्यादा थी। रिजल्ट्स के बारे में, बयाना के युद्ध के बारे में ज्यादा कहीं नहीं मिलता है। ये सोर्सेज, राजस्थानी सोर्सेज में बयाना के जस्ट बिफोर बयाना में युद्ध हुआ था और बाबर की सेनाएं वहां भाग के खड़ी हुई थी और खुद इसने स्वीकार किया है बाबर ने कि बयाना के युद्ध के बाद में हमारी सेनाओं में काफी मोरल डाउन था और किसी ढंग से वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए बाबर ने शराब का, दूसरी चीजें जो शब्द खाने का वो काम किया। तो राजस्थानी सोचते जो कंटेम्प्रेरी तो एक है, नियर कंटेम्प्रेरी हमारा जो साहित्य है, उन साहित्य में राज रत्नाकर है, खुमान राजसू है, इनमें मिलते हैं और उसमें एक नए ढंग से इंटरप्रेट जो बाबर की थ्योरी से प्रतिकूल है। जी, आई थिंक सोहम हैज अ क्वेश्चन। सोहम जी, आप प्लीज अनम्यूट, मैं लेट मी अनम्यूट। जी, are you able to unmute yourself, Soham? हेलो जी सर। Soham, try unmuting yourself now. I think he needs to rejoin. जब तक सर और एक प्रश्न था, ये भी एक प्रश्न हमारे पास आया था। ये कहता है कि ये प्रश्न कहता है कि बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल, एक तो पहले ये भी एक विवाद है कि बप्पा रावल कौन है। तो अलग अलग जितने भी हमारे इतिहासकार हैं तो वो बप्पा रावल को अलग अलग मानते हैं, चाहे वो पंडित ओझा हो, आरजी भंडारकर हो या कोई वीर विनोद भी बप्पा को, जो कविराज श्यामल दास है, वो अलग मानते हैं। और बस यही। जी सर, जी सर, बस यही विभिन्न शिलालेखों में, जी जी सॉरी सर, यस प्लीज। बप्पा रावल के बारे में, पहले तो बप्पा रावल के बारे में लोगों को मतभेद है। कोई इसको शिलादित्य को बप्पा रावल कहता है और कोई महेंद्र को बप्पा रावल कहता है। तो क्या बप्पा रावल एक पद है, एक सम्मानजनक सूचक है कुछ है, परंतु कुछ समय पहले आगरा के पास में 200 कॉइन्स बप्पा रावल के मिले। तो इसलिए ये कहना है कि बप्पा रावल कोई पद है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे जैसे शर्मा ने भी लिखा है कि कोई भी बप्पा रावल जैसे इन सब में गुण थे ऐसा, परंतु बप्पा रावल हिस्टोरिकल फिगर थे और खास तौर से उनको आगे लाने का श्रेय एक हारित ऋषि को है। हारित ऋषि कहते हैं, लखनऊ संप्रदाय के थे और भारतवर्ष में घूम करके भारत की स्थिति देख करके यहाँ आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों को, आतंककारियों को कैसे हटाए जाए, उसके लिए काफी तैयारी कर रहे थे और उन्हीं के प्रयासों से बप्पा रावल और नाग भट्ट ने कॉमन मित्रता करके यहाँ से सल्तनत को खत्म करने का प्रयास किया। सल्तनत उस वक्त बुनी थी, परंतु मोहम्मद कासिम के आक्रमण 712 में हो गए थे। दाइर वगैरह कुछ दिया गया था, मृत्यु हो गई थी और सारा राज्य उन्होंने ले लिया था। तो उसके बाद में दोनों ने मिलकर के ब्राह्मणवाद में युद्ध हुआ, वहां से उनको खदेड़ा गया था। और राजस्थानी सोर्सेज जो बात के हैं वो तो ये मानते हैं कि वो गजनी प्रदेश तक बप्पा रावल गए थे और वहां पर भी गजनी प्रदेश में वहां के सुल्तान को हरा करके, यहाँ तक कि सुल्तान ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और 51 वैवाहिक संबंधों के बारे में बात की जाती है और बप्पा रावल हुआ है।
और जो रावलपिंडी बॉस ये कहते हैं कि रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम से ही जानी जाती है पहले, तो वहां पर उसना ये सेना का जमाव रहा होगा, आगे बढ़े उसके पहले वहां ठहरे होंगे ऐसे से। तो इसलिए बप्पा रावल की हिस्टोसिटी पे भी डाउट करते हैं, परंतु आज सब से चाहे टोड हो चाहे वीर विनोद हो, इन्होंने बप्पा रावल को स्वीकार नहीं किया। परंतु अब बप्पा रावल के बारे में खास तौर से कॉइन्स मिलने के बाद में अन्य हारिस राशि वगैरह के संबंधों को लेकर के बप्पा रावल का हुआ, और उसने चित्तौड़ पर सबसे पहले अधिकार किया था। 8th सेंचुरी में चित्तौड़ जो मान मोरी के पास में था, उसको बप्पा रावल ने लिया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी, और चित्तौड़ राजधानी 1568 तक बराबर रहती। Thank you, sir. Soham, are you able to unmute yourself now? Yes. Am I audible? You're audible. Yes. Yes, sir. So, sir, मेरा प्रश्न राजपूत रेवेलियन ऑफ 1708 to 1710 से रिलेटेड है, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद घटी थी। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो वर्नाकुलर सोर्सेस के बारे में आपने बताया है, तो इसमें इस रेबेलियन को किस तरीके से देखा जाता है, और राजपूत की विक्ट्री को मतलब किस तरीके से शो किया जाता है? मतलब एक एब्सोल्यूट विक्ट्री की तरह शो किया जाता है, या एक मतलब कहीं पे एक मिडिल ग्राउंड देखा जाता है राजपूत एंड मुगल्स के बीच में? राइट फ्रॉम 1682 80 से 1710 तक there was a struggle between Marwar and Mughals, and that is known as a war of independence here. इस युद्ध में जय सिंह ने, जो मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह, उसने भी काफी सहयोग किया था। देयर वाज ए राठौड़ शिशोदय अलायंस, मेवाड़ के महाराणा शिशोदया और मारवाड़ के राठौड़ थे, और इन्होंने 1708 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह वगैरह से संघर्ष हुए थे, और बहादुर शाह अपने भाई से लड़ने के लिए दक्षिण में जाना चाहता था। मारवाड़ वर्ग के शासकों को ही अपने साथ लिया, परंतु इनको लगा जय सिंह और इसको लगा जोधपुर के शासक को कि अगर चले गए तो काम नहीं होगा, तो रास्ते में वो मेवाड़ में आ गए थे विद दुर्गादास, और इन्होंने ये सोचा था कि मुगलों को हटा करके राजपूत शासन स्थापित करें। परंतु जैसा कि राजपूतों में एकता का अभाव हमेशा रहा है कि एक ने प्रपोज किया कि मेवाड़ का महाराणा को राजपूत के ढंग से नेतृत्व सौंप दिया जाए, तो उसमें आपस में अभय सिंह वगैरह का बैठा नहीं, और केवल शादी को लेकर के ही ये समझौता खत्म हो गया। जय सिंह जो उस वक्त था, सवाई जय सिंह, उसके राइट फ्रॉम 1562 जब अकबर से समझौता हुआ था, शादी संबंध हुआ था, उसके बाद से मेवाड़ ने शादी संबंध खत्म कर दिए थे आमेर से। तो इस वक्त जय सिंह ने वापिस इन संबंधों के रिवाइवल पे कहा, तो कि सारा मुगलों से तो ध्यान हट गया अपने आगे, और ये रखा कि कैसे ही मेवाड़ से संबंध हो, और मेवाड़ ने ऐसी शर्तें रखी जिसको जय सिंह ने माना, जिसका आगे जाकर के राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ, बहुत संघर्ष होता रहा, ये सारी दिक्कतें आई। तो 1778 का परिणाम कोई राजस्थान की दृष्टि से जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, और इसके बाद में भी ये अकबर का विद्रोह वगैरह सारा होता है, औरंगजेब के लड़के अकबर का दुर्गादास लेकर के जाता है, संभाजी वहां पर होते हैं। ये बहुत अच्छा मौका था कि दोनों मिलकर के उत्तरी और दक्षिण से मुगलों को घेर सकते थे,
पर उसका भी परिणाम कुछ नहीं रहा। तो हमें चाहिए met, discussed and dispersed without coming to any conclusion। ये हमेशा इनकी जो राय है वो भी हम यही देखते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Vikas has a question for sir. Vikas, you may unmute yourself. सर आपको मेरा नाम, सर मेरा ये सवाल था कि जब भी हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो हमेशा नॉर्थ सेंट्रिक रहता है, जो उत्तर भारत के लिए केंद्रित रहता है। तो सर मेरा ये सवाल है कि दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में भी कई तरह के साम्राज्य थे, पर ऐसा क्यों है कि शैक्षिक संस्थानों पर और पाठ्यक्रम में हमें इस बारे दक्षिण और पूर्वी भारत के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है? ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे, वरना इतिहास की दृष्टि से दक्षिणी भारत का महत्व किसी ढंग से नॉर्थ इंडिया से कम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण होते रहते थे उसके कारण से हमारा इतिहास सिर्फ वहां तक ही रह गया। भारतवर्ष की नेशनल यूनिटी के फैक्टर्स सारा जो दूसरे ढंग से है उनका हमारे गौण हो गया। और ये क्योंकि अंग्रेज भारतवर्ष में आए तो कहते थे कि इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, वो इसको एक देश ही नहीं मानते थे और बहुत से रीजनल हिस्ट्री को डेवलप करने का श्रेय उनको है। रीजनल हिस्ट्री से रीजनलिज्म डेवलप करा दिया उन्होंने, जो आज की आवश्यकता रीजनल हिस्ट्री तो जरूरी है परंतु रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए। तो दक्षिणी भारत को इग्नोर करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद घटना है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिणी भारत ने जितना अगर उत्तर भारत के निर्माण में उनका योगदान है, अनेक दृष्टि से उनका योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। Rajat has a question for Professor Sir. Rajat, you may unmute yourself. Am I audible? Yes. Okay. Thank you, sir, for this wonderful session. मेरा क्वेश्चन था कि when we see the Persian sources, उनकी हमेशा एक टेंडेंसी रहती है to eulogize the Mughals. Similarly, many vernacular sources, that is non-Persian Rajasthani sources, also exhibit a similar tendency. तो क्या हमारे पास vernacular languages में या राजस्थानी sources में कुछ ऐसे sources available हैं जो neutral observers ने लिखे हों? Which ऐसे बहुत से सोर्स जी ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे एक नाम तो कानेर देव प्रबंध पद्मनाथन का है और 1512 में लिखा है, तो आप बिल्कुल उसको अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में है तो दूसरे सारी सोर्सेज से कर सकते हो। और जैसे हमारे ये ख्यातों के बारे में कहा है, ख्यात भी कुछ ख्यातों को छोड़ दीजिएगा, ज्यादातर ख्यातें वस्तुपरक है, ज्यादातर ख्यातें बेस्ड ऑन सॉलिड मटेरियल, बेस्ड ऑन लोकल सोर्सेज, इसलिए उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हालांकि अपने को इन बिटवीन देखना पड़ेगा दोनों के बारे में, जैसे हर एक के बारे में तो थोड़ा रीजनल है या मुगल का है, क्योंकि मुगल भी मुगल सेंट्रिक ज्यादा है, वो भी अपने ढंग से ही, जैसे अबुल फजल ही है जिसको ट्रांसलेटर्स ने कहा ना कि इससे बड़ा कोई हमें नहीं मिल सकता चापलूस। अकबरी एक नायक है, अकबरी भी उसके लिए सब कुछ है, वही लिख करके दिया है। तो इस रंग का यहाँ पर भी साहित्य हो सकता है, कुछ शासकों को करने के लिए भी आगे किया गया है, परंतु ये आर्किवल रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स से ये काफी रिलायबल है। ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जो रिलायबल है, जैसे कहने की नैन्सी का ख्यात का ही जिक्र किया है, वो उसको काफी रिलायबल मान सकते हैं।
कि उसको राज का प्रभाव उसमें नहीं था। तो क्या ये होना स्वाभाविक है। चारण साहित्य को इतना हम तो नहीं दे सकते, इतना ठीक नहीं मान सकते। तो कुछ ख्यातें हैं, ऐसी ख्यातें भी है कि जो केवल किसी मकसद से बनाई है। तो ये सारा फर्क तो पड़ेगा, और इसलिए हमारी निगाहें कितना क्रिटिकल अप्रोच के हिसाब से दोनों को देखें, और ट्रुथ विल कम आउट ये क्रिटिकल आई से देखने के लिए। सोर्सेज भी, क्योंकि सोर्सेज तो है ही इम्पोर्टेंट, पर सर्कमस्टांसेस भी महत्व, सर्कमस्टांस के साथ साथ किस ढंग से डेवलप हुआ वो भी देखना पड़ेगा। जी, thank you, sir. So we have Shashank. Shashank, let me please unmute yourself. Am I audible? Am I audible? Yeah, you're audible. Okay. So sir, मेरा ये क्वेश्चन था कि इंडिया के जो एंशिएंट फिलोसफीज हैं वो यूजुअली यूनिटी को प्रमोट करते हैं, बट व्हेन वी स्टडी अबाउट द मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी गेट दैट लाइक द किंग्स वर डिवाइडेड इन वेरियस सेक्ट्स, जैसे मराठा और राजपूत ये दोनों अलग अलग सेक्ट्स थे, एंड दैट्स व्हाई लाइक दे फेल्ड टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द इन्वेडर्स। सो इसका मेन रीजन आपके मुताबिक क्या है, द डिवीजन वेरियस सेक्ट्स? इसका ही एक हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि रीजनल हिस्ट्री से रीजनलिज्म ज्यादा हुआ। ये बेसिकली इंडिया यूनिटी के खिलाफ है। हालांकि दूसरा ये पक्ष है कि आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखना होगा, तैयार करना होगा, तो जितने भी रूट्स हैं, जितने भी ये है सारे राज्य वगैरह, इनको करके ही हम एक कर सकते हैं सारा। तो हम रीजनल हिस्ट्री को कितना इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जैसे आजकल जो थीसिस लेके जा रहे हैं, अगर किसी शासक लिख रहे तो ऐसा लग रहा है कि उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी है कि रिसर्च स्कॉलर्स को एक बैलेंस आउटलुक रखने के लिए कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। वरना जैसे मराठा या राजस्थान या अन्य, वरना वो चीजों को भी ज्यादा कर सकते थे कि शिवाजी ने तो अपने आप को शिशुयोदय वंश का माना है, गंगा भट्ट ने उसको स्वीकार किया है, और 1674 में कोरोनेशन हुआ, जब ये लेटर जो यहाँ से भेजा गया है या वहां से आया तो अभी यहाँ सुरक्षित है उदयपुर में। तो कि इन चीजों को हाईलाइट ज्यादा करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। संघर्ष को, आपस में लड़ाई करें तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी। हमारी फिश वेरियस टेंडेंसीज है वो उजागर हम जल्दी कर देते हैं, और ये दिक्कतें हैं। जी सर। सर और एक प्रश्न आया था कि सर कर्नल टॉड और कविराज श्यामल दास की वीर विनोद, तो इन दोनों का अगर हम एक व्याख्यान करें तो इसकी सत्यता कितनी है, ये दोनों की ऑथेंटिसिटी कितनी है, कर्नल टॉड के एनल्स एंटिक्विटीज एंड वीर विनोद? ऐसा कि मैं आज लिखता हूँ, शाम को ही उसमें कोई गलती नजर आ सकती है। तो कर्नल टॉड ने जो लिखा है वो किन सर्कमस्टांस में लिखा है देखना होगा। यहाँ की भाषा वो नहीं जानता, यहाँ का लैंग्वेज वो नहीं पढ़ सकता, दूसरे व्यक्तियों के सारे राय, जैसे कहा ना कि कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं कि मीरा को कुंभा की पत्नी मान लिया, या अन्य जहांगीर को हल्दी घाटी में मौजूद मान लिया, तो स्वाभाविक है कुछ गलतियां होने का। परंतु कम से कम ये है कि एक लिखने की प्रेरणा जरूर थी। श्यामल दास का एक है कि श्यामल दास ने जो भी लिखा है वो सारा डॉक्यूमेंट्री। श्यामल दास के वीर विनोद को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एंशिएंट पीरियड, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। एंशिएंट पीरियड में शायद उन्होंने अपना जो बुद्धि है उसका प्रदर्शन ज्यादा करने की कोशिश की। यहाँ पर क्रिटिकल ज्यादा है, थर्ड पीरियड में इतने क्रिटिकल नहीं है। तो परंतु श्यामल दास ने जो भी लिखा है
उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने किताब में दिया है। जैसे जितना सरकार शिप्रा के युद्ध को नहीं मानते हैं जो 1769 में हुआ था, महाजी सिंधिया और मेवाड़ का महाराणा जो थे हरि सिंह की सेना में, परंतु अब सब मानने लगे कि जब वीर विनोद को देखा, वीर विनोद ने सारी डॉक्यूमेंट्स देखे और वो डॉक्यूमेंट्स को मराठा डॉक्यूमेंट से भी कंपेयर किया, पेशवा दफ्तर के 28 वॉल्यूम वगैरह में भी हुआ है, पीआरसी में भी हुआ है, तो अपने आप ही मानने लगे। तो ये अपने आप में काफी कोशिश रहती थी कि ज्यादा ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा ऑथेंटिसिटी हो, परंतु कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कारण, वरना कोई इसके पीछे दबाव नहीं था उसका, किसी का वीर विनोद लिखने के पीछे कि किसी ढंग से दबाव में करे, किसी की प्रशंसा करें, किसी की तारीफ करें। तो इसलिए कुछ कमियां तो रही जाती है। जैसे प्रताप के बारे में कहने, वो इमोशन लेस थे, वो वीर विनोद लिखते वक्त कोई इमोशन उनके पास इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसलिए सारी चीजें होती रही। सर अंबादास जी का प्रश्न है, उन्होंने लिखा है सर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज सिसोदिया वंश के ही है, अगर हाँ तो ऐतिहासिक दस्तावेज कौन सी है? ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, सिर्फ लेटर्स का एक्सचेंज है। जो बताया था कि 1557 में गद्दी के टाइम पे किया था, और ये जो लिखा है वो सब बाद का है। बाद में जोड़ा है कि मेवाड़ से नेपाल राजवंश भी गया है, और वहाँ शिशोदा गांव है, शिशोद गांव से ये सब गए हुए हैं कि छत्रपति शिवाजी की पूर्वज वगैरह। इसको देखना पड़ेगा अच्छे ढंग से, और कोई आशा नहीं कि इनसे जुड़े हुए हो, किए हुए हो। और संभाजी ने तो बहुत ध्यान रखा, शाहू जी ने तो बहुत ध्यान रखा है इस संबंधों का। कभी भी कोई कठिनाइयां आती थी तो पेशवा को रोक देते थे, और वो तो कहते थे कि हमारे स्वामी है, और इसलिए जो पेशवा बाजीराव यहाँ आया, छत्र वगैरह वाराणों को लगे, तो लोगों ने रोका, तो उसने कहा कि तो हमारे स्वामी की स्वामी। तो इसलिए मान्यताएं धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। हालांकि कुछ पेपर्स ऐसे हैं कि जिसको विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि अभी एक किताब छपने वाली है, अभी छपी नहीं है, शायद छपने में वो दे रहे हैं सज्जन, PS मेहता ने लिखा, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि छत्रपति शिवाजी मेवाड़ से गए हुए, और वो मुतोल पेपर्स वगैरह को भी डिस्कार्ड करते। तो हर तरह की ओपिनियन है, अब तक कोई ऐसा। हाँ जी सर, आखिरी प्रश्न ये है जो हमारे पास आया है कि महारानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता में राजस्थानी सोर्सेज जो कहती है वो कोलैबोरेट करने के बाद कितनी सत्य मतलब कितनी सत्यता है उसके हिस्टोरिकल? कानून गो का देखा ही है, कानून गो और केस लाल। कानून गो ने सबसे पहले कहा कि ये गलत है, जबकि हमारे यहाँ दर्शक शर्मा, एल श्रीवास्तव वगैरह मानते हैं। और दर्शक शर्मा ने एक किताब लिखी है, एक किताब बताई है जो इसके पहले लिखी हुई है, छतई चरित्र। छतई चरित्र के आधार पर कहा कि ये यही था, और इसको बाद में लिखा गया हो तो इसलिए छतई चरित्र के आधार पर ये दर्शक शर्मा ने इसको ठीक बांधा है। एल श्रीवास्तव मानते हैं, वो पर्शियन सोर्सेज वगैरह भी कहते हैं। और जो उस वक्त खुश वो था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो, उससे कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। तो कंटेम्पररी जंग से उस वक्त कुछ नहीं लिखा, और अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को देख करके वो हो सकता कि ऐसी घटनाएं हो तो ताजुब नहीं, क्योंकि कमला देवी वगैरह से भी
रामचंद्र राव की पत्नी वगैरह के साथ में जो संबंध हुए उसको देखते कोई दिक्कत नहीं लगती है। जी सर, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, सॉरी। थैंक यू। जी सर, I would now request Rashi to please come up and deliver the vote of thanks. अरे ठीक है, डोंट गो फॉर फॉर्मेलिटीज। No, this lecture does deserve it, sir. Ji Rashi. Namaste everybody. I'm Randa House, University of Delhi. Today I feel really proud to present this vote of thanks on behalf of Historical India. We are very grateful to Professor K.S. Gupta ji, who at an age of 90 kept us engaged and enthusiastic throughout this session. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time in gracing this event. A very big thanks to our chief guest Anurag Saxena ji for his motivating words and his commendable work at Pratapendra. Thank you, Kshitij from St. Stephen College and Anirudh from Hansraj College for preparing the concept note. I must also mention our deep sense of appreciation for our points of contacts in Hansraj College, Ramjas College, St. Stephen's Hindu College, Miranda House, University of Delhi, Kirodimal College, Deshbandhu College, Kalindi College, Gargi College, Maitri College, Faculty of Arts, University of Delhi, and Jawaharlal Nehru University. I would like to express our gratitude to Historical India members for joining in from Agra, Udaipur, Nagpur, Pune, Aurangabad, Haryana, and all the anchors for ensuring a smooth organization of the event. Finally, I would like to thank the audience for attending the event and making it a great success. To continue with these intellectually enriching sessions, our next lecture of the series will be held next month. Do follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel to stay updated with the forthcoming events. The link for the respectives are in the chat box. Thank you so much, everybody. Namaste. Thank you so much, sir. Namaste. Thank you.